हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एनजे इन्फो टेक्निवर्स। इस वीडियो में हम काली टर्मिनल के थ्रू लिनक्स के फाइल सिस्टम को नेविगेट करना सीखेंगे, विच सिंपली मीन्स कि हम एक डायरेक्टरी से दूसरे डायरेक्टरी में कैसे जाते हैं। नेविगेट करने के कई तरीके हो सकते हैं और आज हम उन सभी को इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं काली टर्मिनल, जहाँ से हमें फाइल सिस्टम को नेविगेट करना है। एंड देन एडजेसेंट में मैं ओपन कर लेता हूँ फाइल मैनेजर, which also allows navigating the file system but through GUI. Now if you notice the terminal, by default terminal open होती है at the home directory of the current user. Since the current user is Kali, this particular tilde symbol simply means the home directory of the Kali user, which would be /home/Kali, जो कि हम पहले के वीडियोस में समझ चुके हैं। इसको कंफर्म करने के लिए we can simply run the command pwd and we can see the current directory is /home/Kali. Now let's take a look at the file manager window. ये जो पर्टिकुलर एरिया है फाइल मैनेजर में, दिस इज कॉल्ड लोकेशन बार या पाथ बार। यहाँ पर हम अपनी करंट लोकेशन के फुल पाथ को देख सकते हैं। सो इफ़ यू क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर एरिया, यू कैन सी कि करंट लोकेशन इज /home/Kali. नाउ वी हैव अंडरस्टूड कि जब भी हम टर्मिनल ओपन करते हैं या फाइल मैनेजर ओपन करते हैं, वो ओपन होती है एट द लोकेशन ऑफ द करंट यूजर होम डायरेक्टरी. Our goal here is to learn navigating the file system via terminal, but मैं file manager का भी reference लूँगा so that you can relate the things and get a better understanding. Now file manager में हम जब भी किसी location को browse करते हैं, we can immediately see the content of that directory. For example, I can see here कि /home/Kali के अंदर ये सारे directories हैं like desktop, documents, downloads, music and so on. In terminal, we use ls command in order to see the content of the directory. So simply type ls and hit enter. Now we can see all the content of this particular directory which we were able to see here. अब अगर हमें documents directory के अंदर जाना है, for example, तो file manager में we simply double click on documents and we are done. Also we can see कि इसमें एक directory है called personal and एक file है called test. In terminal, we go to a directory using cd command. cd means change to directory. cd command को यूज करने का तरीका ये है कि आप टाइप करें cd and then specify the directory जहां हम जाना चाहते हैं. तो मैंने टाइप किया है cd then space and then the directory in which I want to go. So I want to go inside documents. So I'll just copy paste this and hit enter. Now you can see that our current location is documents. You can also run pwd command in order to see the complete path, which is /home/Kali/documents. Even in file manager, you can click on this bar and you can see the location is /home/Kali and /documents. Now इस document directory के content को देखने के लिए again you can run the ls command. So type ls and hit enter. And you can see that inside this document directory we have two items. One is personal, another is test. Now in file manager there is a visual difference between a directory and a file. हम देख के बता सकते हैं कि personal is a directory and test is a file. Similarly हमें टर्मिनल के आउटपुट में भी ये विजुअल डिफरेंस देखने को मिलता है. फॉर एग्जाम्पल, directory is written in bold and blue color, जबकि फाइल इज रिटेन इन प्लेन वाइट टेक्स्ट. ls कमांड के और भी वेरिएशन है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. नाउ इफ आई वांट टू गो इनटू दिस पर्सनल डायरेक्टरी, आई कैन सिंपली टाइप cd and then personal, hit enter. Now we are into the personal directory. If I use ls command, I can see that inside personal we have a folder called academics. We have another folder or directory called family friends, then one folder called office, and there is one file called personalinfo.txt. Inside the file manager, you can simply double click on the personal and you can see the same output. A very important point to note here is that कि जब भी किसी डायरेक्टरी या फाइल नेम में स्पेस आ जाए तो हम उसे कोट के अंदर लिखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ डायरेक्टरी नेम है फैमिली स्पेस फ्रेंड्स एंड यहाँ फाइल नेम है personal
space info.txt. So these two outputs are enclosed within the single quote. And same we have to follow when we are using that directory or file in our command. अब सपोज कि cd कमांड यूज करके मुझे फैमिली फ्रेंड्स वाले डायरेक्टरी में जाना है and I don't use the quote around it. So let me type cd space, I'll use family friends but without using the quote and hit enter. Now observe that this particular command was executed but some error output was given to us and the prompt was returned back. और ये जो prompt हमें वापस मिला है that still has the directory called personal. यानी कि हम फैमिली फ्रेंड्स वाली डायरेक्टरी के अंदर नहीं जा पाए। अगर आप पहले के किसी cd कमांड के एग्जीक्यूशन को ऑब्जर्व करेंगे, फॉर एग्जांपल cd पर्सनल, तो cd कमांड जब भी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होता है तो टर्मिनल पे कोई आउटपुट देखने को नहीं मिलता और कमांड एग्जीक्यूशन के बाद ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसके अंदर हमारी डायरेक्टरी लोकेशन अपडेट हो जाती है। ये cd कमांड रन करने से पहले हमारी वर्किंग डायरेक्टरी थी डॉक्यूमेंट्स और इसके सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन के बाद हमारी डायरेक्टरी अपडेट हो गई डॉक्यूमेंट्स के अंदर पर्सनल। बट इस केस में कमांड एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल नहीं हुई, इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर भी हमारी लोकेशन अपडेट नहीं हुई है। सो द करेक्ट वे इज टू यूज द कोड अराउंड द फाइल और डायरेक्टरी नेम। I'll not type the full command again. टर्मिनल में आप अपने प्रीवियस कमांड्स को एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग द अप एरो की ऑन द कीबोर्ड। तो मैं जैसे ही अप एरो की प्रेस करूंगा तो पिछली कमांड ऑटोमेटिकली आ जाएगी। नाउ इफ आई प्रेस इट वंस मोर तो उसके पिछले वाली कमांड आ जाएगी। तो दिस वे वी कैन एक्सेस आवर प्रीवियसली एग्जीक्यूटेड कमांड्स। मैं अब डाउन एरो की प्रेस करके इस कमांड को एक्सेस कर लूंगा। Now I'll put directory name within the quote. So I'll just use quote around the directory name and hit enter. Now you can see after the command execution हमें कोई भी output देखने को नहीं मिला है. It means the command execution was successful and also our location has been updated within this square bracket. पहले हम personal में थे and now we are inside the family friends directory. You can use ls command to see what's inside this, but this directory is currently empty, इसलिए आपको यहाँ आउटपुट में कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। You can verify the same by using the file manager. So if you go inside family and friends, there is nothing inside it. अब इस टर्मिनल की स्क्रीन काफ़ी सारे कमांड्स और उसके आउटपुट की वजह से भरती जा रही है। अगर पिछले कमांड्स और उसके आउटपुट की ज़रूरत ना हो तो हम इस स्क्रीन को क्लियर कर सकते हैं। सिंपली टाइप क्लियर एंड हिट एंटर। क्लियर कमांड से आपके सिस्टम का कोई भी फाइल या डेटा डिलीट नहीं होता है। इट सिंपली क्लियर्स योर वर्किंग स्क्रीन एंड गिव्स यू अ फ्रेश पेज टू कंटिन्यू योर वर्क। अब अगर मुझे एक डायरेक्टरी बैकवर्ड जाना हो तो फाइल मैनेजर में हम इस अप एरो की को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हम हैं, इफ़ आई क्लिक ऑन दिस, अभी हमें होम, काली, डॉक्यूमेंट्स, पर्सनल एंड देन फैमिली फ्रेंड्स के अंदर। इफ़ आई क्लिक ऑन दिस अप एरो हम एक डायरेक्टरी पीछे चले गए पर्सनल में। सो यू कैन क्लिक हियर एंड सी कि अब हम पर्सनल के अंदर हैं। इफ़ आई क्लिक ऑन इट वंस मोर वी हैव नाउ मूव्ड बैक टू डॉक्यूमेंट्स। क्लिक ऑन इट एंड वेरीफाई द लोकेशन। सेम वे अगर टर्मिनल में हमें एक डायरेक्टरी पीछे जाना हो तो हम यूज़ करते हैं cd स्पेस डॉट डॉट, हिट एंटर एंड यू कैन सी कि इस कमांड से पहले हमारी लोकेशन थी पर्सनल के अंदर फैमिली फ्रेंड्स एंड नाउ we are back into personal. If you run the same command once more, we are now back to documents. अब इस पॉइंट पे हम डायरेक्टरी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स को समझ लेते हैं। सबसे पहले है सिंगल डॉट। सिंगल डॉट रिप्रेजेंट करता है करेंट डायरेक्टरी को। तो अगर मैं टाइप करूँ यहाँ पे cd स्पेस सिंगल डॉट एंड हिट एंटर तो आप देख सकते हैं कि कमांड एग्जीक्यूशन इज सक्सेसफुल बिकॉज यहाँ पर कोई एरर मैसेज नहीं आया है। बट स्क्वायर ब्रैकेट में जो हमारी डायरेक्टरी लोकेशन है दैट इज सेम एज द प्रीवियस वन।
ये लोकेशन चेंज नहीं हुई है, दैट इज़ बिकॉज हमने cd कमांड को बोला है कि हमें करेंट डायरेक्टरी में ले चलो जहां हम ऑलरेडी थे, तो लॉजिकली हमने डायरेक्टरी चेंज किया ही नहीं। आई जस्ट वांटेड टू एक्सप्लेन व्हाट सिंगल डॉट रिप्रेजेंट्स। नेक्स्ट इज डबल डॉट। तो अभी जस्ट हमने देखा कि डबल डॉट रिप्रेजेंट्स द पेरेंट डायरेक्टरी। जैसे अभी करंट लोकेशन है स्लैश होम स्लैश काली स्लैश डॉक्यूमेंट्स, तो डॉक्यूमेंट्स के लिए जो पेरेंट डायरेक्टरी है वो है काली। सो इफ आई टाइप सी डी स्पेस डॉट डॉट एंड हिट एंटर, ये एक डायरेक्टरी पीछे चली जाएगी, यानी कि हम डॉक्यूमेंट्स के पेरेंट डायरेक्टरी में चले गए। पहले हम थे डॉक्यूमेंट्स के अंदर एंड नाउ वी आर इनसाइड काली। नेक्स्ट इज फॉरवर्ड स्लैश विच मीन्स रूट डायरेक्टरी ऑफ द फाइल सिस्टम। इसे हम ऑलरेडी फाइल सिस्टम वाली वीडियोस में समझ चुके हैं। फॉरवर्ड स्लैश इज द रूट ऑफ द फाइल सिस्टम, यानी कि लिनक्स में जितने भी फाइल्स एंड डायरेक्टरीज हैं वो यहीं से अल्टीमेटली ब्रांच आउट होती हैं। इन अदर टर्म्स हम ये भी बोल सकते हैं कि फॉरवर्ड स्लैश की कोई पेरेंट डायरेक्टरी नहीं होती, बिकॉज उससे पीछे कुछ भी नहीं होता। जो भी चीज़ें होंगी वो उसके आगे ही होंगी। अगर हम टर्मिनल में टाइप करें cd स्पेस फॉरवर्ड स्लैश एंड हिट एंटर, तो जो स्क्वायर ब्रैकेट में डायरेक्टरी आई है, करंट लोकेशन आई है, वो है फॉरवर्ड स्लैश। एंड अगर हम pwd करें तो उसका रिजल्ट भी है फॉरवर्ड स्लैश। इट मीन्स कि हम फाइल सिस्टम के रूट पे पहुंच गए हैं जिसके पीछे कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। स्टिल अगर हम cd डॉट डॉट रन करें और ट्राई करें इसके पीछे जाने का, तो देखिए क्या होता है। इफ आई रन द कमांड, you see the command is successful because there is no error message। तो कमांड सक्सेसफुल हो गया बट स्टिल द लोकेशन हैजंट चेंज्ड। हम जितनी मर्जी ट्राई कर लें इस स्लैश के पीछे जाने का, वी कांट गो बिकॉज दिस फॉरवर्ड स्लैश इज द ओरिजिन ऑफ एवरीथिंग। इससे पहले कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। नेक्स्ट इज टिल्डे सिंबल, जिसको हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। तो टिल्डे सिंबल सिंपली मीन्स होम डायरेक्टरी ऑफ द करंट यूजर। तो इफ आई एग्जीक्यूट cd space tilde and hit enter, it will take us to the home directory of the Kali user, which is slash home slash Kali। इन symbols को समझने के बाद now we will understand different ways to specify directory locations। For this, let's take a look at this sample directory structure, जहाँ पर forward slash is the root of the file system। उसके अंदर है directories like bin, home, root, var, etc। होम के अंदर है काली डायरेक्टरी। काली के अंदर है डायरेक्टरीज लाइक डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स, पिक्चर्स, वीडियोस एंड सो ऑन। डॉक्यूमेंट्स के अंदर है पर्सनल और उसके अंदर है डायरेक्टरीज लाइक एकेडमिक्स, फैमिली, फ्रेंड्स एंड ऑफिस। सपोज कि इस एग्जांपल में हमारी करंट लोकेशन है होम और हमें जाना है एकेडमिक्स डायरेक्टरी के अंदर। इस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए लेट मी ओपन अ न्यू टैब with 4 terminals। So I'll click on File, New tab from Preset and click on 4 terminals। अब यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बता दूँ। अभी जो मैंने ये 4 टर्मिनल्स ओपन किए हैं, दोज आर ओपन अप एट द लोकेशन ऑफ स्लैश होम स्लैश काली। इस एग्जाम्पल में मेरी जो करंट लोकेशन है वो है स्लैश होम। तो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मुझे इन सभी टर्मिनल्स के वर्किंग डायरेक्टरी को चेंज करना होगा टू स्लैश होम लोकेशन। उसके लिए हम सिंपली cd स्पेस डॉट डॉट करके एक डायरेक्टरी पीछे जा सकते हैं। अभी हम करेंट डायरेक्टरी है हमारी काली, हमें जाना है होम पे यानी एक डायरेक्टरी पीछे, तो हम cd स्पेस डॉट डॉट करके स्लैश होम पे जा सकते हैं। और इसी तरीके से सारे टर्मिनल्स में हम सेम कमांड रन करके अपनी वर्किंग डायरेक्टरी को चेंज कर सकते हैं। बट इसको अचीव करने का एक ट्रिक ये है कि ये जो 4 न्यू टर्मिनल्स हमने ओपन किया है, इससे पहले जब हम यहाँ पे थे इस टर्मिनल में, तभी हम इसकी वर्किंग डायरेक्टरी को चेंज कर लें टू आवर डिज़ायर्ड लोकेशन। तो हमारे डिज़ायर्ड लोकेशन टी स्लैश होम, तो यहाँ भी हम cd डॉट डॉट करके एक डायरेक्टरी पीछे चले जाएंगे एंड आवर करेंट डायरेक्टरी इज स्लैश होम। नाउ इफ आई गो टू फाइल एंड ओपन 4 न्यू टर्मिनल्स, तो आप देखेंगे कि जितने टर्मिनल्स ओपन हुए ऑटोमेटिकली दे ऑल हैव द करेंट डायरेक्टरी एज स्लैश होम। इट मीन्स कि हम जब यहाँ से टर्मिनल्स ओपन करते हैं तो ये अपनी करंट लोकेशन को इस टर्मिनल से कैरी करता है।
नाउ कमिंग बैक टू द सिनेरियो, हमारी वर्किंग डायरेक्टरी सेट हो चुकी है टू स्लैश होम इन ऑल दीज 4 टर्मिनल्स। अब एकेडमिक्स डायरेक्टरी तक जाने के लिए हमें जाना होगा इसके पेरेंट डायरेक्टरी पर्सनल तक, और फिर उसके पेरेंट डायरेक्टरी डॉक्यूमेंट्स तक, एंड देन उसके पेरेंट डायरेक्टरी काली, एंड देन उसके पेरेंट डायरेक्टरी होम, एंड फाइनली उसकी पेरेंट डायरेक्टरी है फॉरवर्ड स्लैश which is the origin of the entire file system. So this way we have traced the full path of our desired destination, और इसकी फुल पाथ निकल के आई है स्लैश होम स्लैश काली स्लैश डॉक्यूमेंट्स स्लैश पर्सनल स्लैश एकेडमिक्स। एक बार इस फुल पाथ की अंडरस्टैंडिंग हो गई तो नाउ यू कैन इजीली अंडरस्टैंड डिफरेंट वेज टू गो टू अ लोकेशन। किसी लोकेशन पे जाने का एक तो सबसे बेसिक तरीका ये है कि हम वन बाय वन डायरेक्टरी के अंदर जाएं। जैसे अभी हम हैं स्लैश होम के अंदर, तो हमें नेक्स्ट जाना होगा काली के अंदर, तो आई विल टाइप cd स्पेस काली एंड हिट एंटर, then cd space documents and hit enter, then cd into personal, hit enter, and finally cd into academics and hit enter. So this is a very basic way कि हम एक एक करके अपने desired location पे पहुंच सकते हैं। एंड फिर इसकी कंटेंट को देखना है तो ls कमांड यूज करके हम इसकी कंटेंट को देख सकते, which is again empty in this case. बट दिस मेथड इज़ ओनली यूजफुल जब हमें पता न हो कि हमें किस डायरेक्टरी में अल्टीमेटली जाना है, एंड वी सिंपली वांट टू एक्सप्लोर ऑल द डायरेक्टरीज वन बाय वन कि कहाँ पर क्या रखा हुआ है। बट इस सिनेरियो में हमें ऑलरेडी पता है कि हमें किस डायरेक्टरी में जाना है, तो वी कैन सिंपली यूज cd एंड देन फुल पाथ ऑफ द डायरेक्टरी। सो आई विल टाइप cd स्पेस। अब इस फुल पाथ को टाइप करना भी थोड़ा मेहनत का काम है, और इसको टाइप करने में गलतियां भी हो सकती हैं। इसको इजी करने के लिए टर्मिनल में एक टैब कंप्लीशन फीचर होता है, इसको समझते हैं। cd के बाद मैं पहले मैं टाइप कर दूंगा स्लैश विच रिप्रेजेंट्स द रूट ऑफ द फाइल सिस्टम, देन अब मुझे जाना है होम में, तो आई टाइप होम का h and press tab key on my keyboard. So if I press tab, see the terminal will auto complete the rest of the text. होम के बाद है काली, तो I'll simply type काली का K and hit tab. Then I'll type documents का D and hit tab. Now you can see कि D से start होने वाले 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं यहाँ पे। 3 डायरेक्टरीज हैं, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स एंड डाउनलोड्स। अब यहाँ पे 2 तरीके हैं आगे बढ़ने के। पहला तरीका तो ये है कि जब आपको ये ऑप्शंस मिले कि दीज आर द डायरेक्टरी स्टार्टिंग विद द लेटर डी, या जो भी आपने टाइप किया है, तो आप अगेन टैब की यूज़ करके इन ऑप्शंस को नेविगेट कर सकते हैं। अब अगर मैं एक बार टैब प्रेस करूँगा तो फर्स्ट ऑप्शन इज सिलेक्टेड, बट मुझे चाहिए सेकेंड ऑप्शन बिकॉज मुझे डॉक्यूमेंट्स में जाना है, तो आई प्रेस द टैब की वंस मोर, और देखिए डॉक्यूमेंट्स हाईलाइट हो गया। नाउ दिस इज द डिजायर्ड डायरेक्टरी, तो यहाँ पर मैं एंटर प्रेस कर दूंगा एंड यू कैन सी कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आ गई। अब दूसरा तरीका ये है, पहले मैं इसे डिलीट कर लेता हूँ। दूसरा तरीका ये है कि आप मिनिमम इतने कैरेक्टर्स टाइप करें कि उससे मैच करने वाला और कोई ना हो। अब मुझे जाना है डॉक्यूमेंट्स में, और अगर मैं डॉक्यूमेंट्स का डी टाइप करके टैब प्रेस करूँगा तो डी से स्टार्ट होने वाले 3 डायरेक्टरीज हैं, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स एंड डाउनलोड्स। तो फिर ये हमें 3 ऑप्शन दे देगा। अगर मैं डॉक्यूमेंट्स का डी ओ टाइप करूँ एंड देन आई प्रेस टैब, तो डी ओ से स्टार्ट होने वाले 2 डायरेक्टरीज होंगे, डॉक्यूमेंट्स एंड डाउनलोड्स। और अगर मैं डॉक्यूमेंट्स का डी ओ सी टाइप करूँ तो इसका एक ही मैच होगा, विच इज़ द डॉक्यूमेंट्स इटसेल्फ। अब अगर मैं टैब प्रेस करूँगा तो ये मुझे कोई भी ऑप्शन नहीं देगा, इट विल कंप्लीट दी डायरेक्टरी नेम। तो ऑटो कंप्लीशन फीचर को हमें स्टार्टिंग के कीवर्ड्स देने होते हैं, और उससे मैचिंग अगर एक एंटिटी है तो वो उसे टाइप कर देगा, अगर मल्टीपल एंटिटीज़ हैं तो वो हमें ऑप्शन में देगा कि आपको कौन सा सिलेक्ट करना है। अब डॉक्यूमेंट्स के आगे हमें जाना है पर्सनल में, तो आई विल टाइप पी एंड हिट टैब। फाइनली अब हमें जाना है एकेडमिक्स में, तो आई विल टाइप ए एंड हिट
tab. Now our path is complete. Hit enter and now you can see कि हम academics directory के अंदर आ चुके हैं। तो इस केस में हमने स्टेप बाय स्टेप एक एक करके हम डायरेक्टरी के अंदर जाते गए एंड अल्टीमेटली रीच्ड आवर डेस्टिनेशन। बट यहाँ पर हम एक लाइन में कमांड रन करके अपने एक्चुअल डेस्टिनेशन पे पहुँच गए। अब यहाँ पे जो हमने पाथ स्पेसिफाई किया है इसको हम और भी तरीके से लिख सकते हैं। एज पर द अज्यूम्ड सिनेरियो हमारी करंट लोकेशन है स्लैश होम। हमने थोड़ी देर पहले ही इस वीडियो में सीखा है कि हम करंट डायरेक्टरी को सिंगल डॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो हमारी फुल पाथ है इसमें हम स्लैश होम को डॉट से रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमारी नई रिप्रेजेंटेशन होगी इस पाथ की डॉट एंड देन slash rest of the text. Let me show you. So I'll type cd space dot and then rest of the text. तो इस टेक्स्ट को मैं सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप यूज करके पेस्ट कर दूंगा। I'll click on this terminal to make it active and hit enter. You see कि command execution is successful. There is no error message given and our folder location, our working directory is also updated. यहाँ पर एक और तरीका है जिससे आप इस पाथ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये पाथ स्टार्ट होती है स्लैश होम स्लैश काली से। सिंस करेंटली वी आर दी काली यूज़र, तो काली यूज़र के लिए स्लैश होम स्लैश काली को हम रिप्लेस कर सकते हैं टिल्डे सिंबल से। तो हमारी नई रिप्रेजेंटेशन होगी वो होगी टिल्डे एंड देन स्लैश डॉक्यूमेंट स्लैश पर्सनल स्लैश एकेडमिक्स। So I'll type cd space tilde and then I'll copy paste the rest of the text and hit enter. Again you can see the command execution is successful. There is no error message given here and we have successfully switched to academics directory. This is how we can represent a location in multiple ways और कब क्या यूज़ करना है it all depends on the scenario. तो आज की वीडियो में इतना ही। होप कि वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन साइनिंग ऑफ।